नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। اردو کے شہدا جناب یم ڈی ملا صاحب سیکریٹری ہیں ہندوستانی اردو جنس کی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مختصراً اپنے تاثرات سے میرے پاس جگر تھام کے بیٹھو، اب ہماری باری ہے۔ بالکل، جب اردو کی بات آتی ہے تو میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں اور سارے خیالات گڑگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر میری زبان ایسی ہے کہ میں اچھے الفاظ لانے کے چکر میں میرے برے الفاظ بھی بھول جاتا ہوں۔ یہ اعظم شاہد اور اپنے وہ ہیں ملن صاحب وہ گروپ نہیں کرتے ہیں ورڈز کے لیے، لفظوں کے لیے گروپ نہیں، ان کو سوچنا نہیں پڑتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے، مجھے 1 منٹ کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ خیر، اردو سے پتہ نہیں میرا تعلق کہاں سے شروع ہوا، مگر اس سے پیار ہو گیا۔ مجھے یاد ہے میں جب کوئی نبی آواز اتنی بلند ہے کہ اسے مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو میں جب 13-14 سال کا تھا، پتہ نہیں کہاں سے میرے پاس، مجھے کہاں سے ملی میرے گھر میں ایک پھٹی پرانی داستان امیر حمزہ۔ وہ زمانے میں شاید میری عمر کے لوگوں نے اس کا نام پڑھا ہوگا، نہیں تو نام تو سنا ہوگا کم سے کم۔ داستان امیر حمزہ 14 والیوم کی بک تھی اور میں نے وہ پوری پڑھی تھی۔ مجھے آج بھی افراسیاب یاد ہے، مجھے آج بھی امیر حمزہ یاد ہے، پھر وہ عمرو یاد ہے، عمرو ایجاب مجھے اچھی طرح یاد ہے کس طرح وہ اپنے عقل سے افراسیاب کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ پھر میں نے حاتم طائی پڑھی، پھر وہ چسکا لگتا گیا اور اردو کا ذوق یہاں تک لے آیا ہے کہ میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے میری موت کے بعد میں فرشتے مجھے فیض سنائیں گے تو میں آج مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اپنے میاں مٹھو ہوگی، بات ہوگی۔ میں نے پچھلے 20 سال سے میرے گاؤں میں میرے باپ کے نام پہ ایک اردو میڈیم اسکول چلا رہا ہوں، ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں نارتھ کرناٹک میں، حیدرآباد کرناٹک میں اردو میڈیم اسکولز کا رواج ہے۔ اردو وہاں نہیں مرے گی، اتنی جلدی تو نہیں مرے گی، مگر انفارچونیٹلی ساؤتھ کرناٹک میں داونگیرے سے ادھر اردو کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ برسرے زبان تو اردو بولتے ہیں، اردو کی کو فروغ دینے کی کاوشیں اتنی نہیں کرتے ہیں جتنے وہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہونا چاہیے۔ ابھی بہت اچھی بات کہی تھی محسن صاحب نے کہ کنڑا پڑھنا ضروری ہے۔ وی کے عبید اللہ اسکول کا نام وی کے عبید اللہ گورنمنٹ اردو پرائمری اسکول ہے، مگر کوئی اردو لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک اور بات ہمارے لیے بہت ہی مطلب سوچنے والی بات ہے کہ
2 साल पहले की जो क्लास पिछली 34 लड़के SSLC को अपीयर हुए और उसमें से 28 लड़के कनाडा में फेल हुए। कनाडा से नफरत हमें कहीं नहीं ले जाएगी। हमारी माशी जिंदगी का इन्हिसार, करेक्ट वर्ड बोल रहा हूं, हमारी माशी जिंदगी का इन्हिसार टोटली कन्नड़ा पे है, इंग्लिश पे है। उर्दू हमारी सकाफती जबान है, हमारी मजहबी जबान नहीं है, मगर उसके साथ साथ कन्नड़ा, जैसे साहब ने बताया अभी, कन्नड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है कि उसका ताल्लुक माश से है, रोजी से है हमारे। तो ये शऊर होना चाहिए कि उर्दू को पढ़ाया जाए, मगर कन्नड़ा से दूरी ना हो। ठीक है। और शाइस्ता, मोहतरमा शाइस्ता की काविशों का एहतराम करना चाहिए। मेरी उनकी हमेशा अनबन रही है कई चीजों को लेके, मगर बेचारी वो और उनके जो साथी हैं नफरी और नकदी फुकदान के बावजूद नफरी और नकदी फुकदान के बावजूद ये मुहिम को चलाए जा रहे हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, चलाए जा रहे हैं। अब सामने एक और बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग समझते हैं हम गरीब हैं, गलत है। हमसे अमीर कोई नहीं है। हम अपने चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उर्दू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर करने वाला भी तो चाहिए। और एक दूसरा बहुत ही मतलब कैसे उसको प्रैक्टिस में लाएं वो समझ में नहीं आता है। ये जो भी उर्दू के प्रोग्राम रहते हैं उससे आज तो अच्छी बात है कि 45 के नीचे वाले हैं, नहीं तो सिर्फ 60 के नीचे वाले होते हैं, 60 के ऊपर वाले 60 के ऊपर वाले होते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि काफी यंगस्टर्स है, ये यंगर जनरेशन को लाना चाहिए। मैं हमारी लेक्चरर बैठी हुई यहाँ पे BTS कॉलेज की, उनसे हमेशा कहता हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, उर्दू के स्टूडेंट्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जबान मादरी जबान उर्दू है, तो उर्दू के से जज्बा पैदा होगा तो पैदा होगा, तो उनको ले आए। फाइनल ईयर के हसनात कॉलेज है, हमारे शाहीन कॉलेज है, वहां से कोई आता नहीं है किसी भी उर्दू प्रोग्राम में, यंगस्टर्स नहीं आते। किसी तरह एक लाएअमल बनाना चाहिए हमको, जहां से हम यंगस्टर्स को जोड़ सके। एक बार इसका रुक़े पुरनूर एक बार देख लेना, कोई उसका आशिक हो जाएगा, उसको दिखाना चाहिए। एक बार बताओ, बहुत जरूरी है कि इसको किस तरह करें, किस तरह हम करें। तो खैर ये जारी है। मेरे मुर्शद बैठे हुए हैं, मेरे सदर बैठे हुए हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जो मुझे खींच के रखते हैं, मुझे ज्यादा बोलने नहीं देते वो, क्योंकि मैं हड़बों किस्म का आदमी हूँ, बोलता रहता हूँ तो कुछ भी बोल देता हूँ। हमारे यहाँ हमने हिंदुस्तानी उर्दू मंच में हर हफ्ता हर संडे को उर्दू अरबी की क्लास चलते हैं, फारसी की, हर संडे बाकायदा बिला नागा चलते हैं। हमारी मोजिज हमारी बिटिया रानी बेटी भी है, खनक जोशी, वो भी आती है, हालांकि उसने पढ़ा है बाकायदा। वो और उसके वालिद, कोई आए ना आए वो भी बैठे हुए हैं। वो कोई आए ना आए, वो 2 बजे की क्लास होती है और 1:45 बजे वो हाजिर रहते हैं। तो ये जज्बा है उर्दू सीखने का, ये जज्बे को हमारी गलती है कि हमने मुस्तकबिल का नहीं सोचा, अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाया। इसके लिए मेरे ख्याल से कोई ना कोई सजा होगी, मगर ये आप लोग न कह रहे हैं। तो बस यही मैं कहना चाहता था। हैरी पॉटर को इतना पसंद करते हैं हम लोग, हैरी पॉटर मतलब इतनी पॉपुलर हो गई, आर.के. रोलिंग बिलियनियर हो गई, मगर दास्तान अमीर हमजा हैरी पॉटर से कई अच्छी थी, बहुत अच्छी, सही कहा आपने, कई अच्छी, मगर हमने रोस्टर्स नहीं कराया उसको। क्या बात है। मैं कहता हूँ, मैंने पढ़ा है, हैरी पॉटर भी देखी है, ये भी पढ़ा है, वो बड़ी मतलब ऐसी किताब के दास्तान हमने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वरना वो उसके आशिक हो जाते। और फिर
खदीर साहब हैं, ये कर्म योगी हैं, ये हम तो गुफ्तार के गाजी हैं, ये किरदार के गाजी हैं, ये इन्होंने कर दिखाया और कर रहे हैं। ऐसे हम क्या हैं, हम क्या वो इकबाल बड़ा बातू नहीं है, मन बातों में मोल लेता है, गुफ्तार का तो गाजी बना, किरदार का गाजी बन न सका। हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी रह गए, इन्होंने कर दिखाया तालीम के मैदान में, उर्दू के मैदान में, और प्रैक्टिकल पेश कर रहे हैं। हम उनको फॉलो करना चाहिए। और मैं मोहसिन साहब वो इतने बिजी आदमी है, पता नहीं मैंने तो कहा था कि वो आने वाले नहीं है, क्योंकि वो बहुत बिजी है, बहुत आई मीन इमेजिन मेडिकल एग्जाम, अभी ये नीट का प्रॉब्लम चल रहा है, वो बहुत बिजी है, इसके बावजूद उर्दू के प्यार में आके बैठे रहे। हम सब शुक्र है उनके कि उन्होंने आया और इस और इम्पोर्टेंट चीजें उन्होंने बताई हमको, उसको फॉलो करना चाहिए, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। बस मुझे मौका दिया इन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूँ। ये अलमीन एजुकेशन सोसाइटी और हिंदुस्तानी उर्दू मंच के बाहिनी इश्तिराक से ये खुसूसी तकरीब का इनकाद अमल में आया है। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर जनाब एजाज अली जौहरी साहब हमारे साथ हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी मुख्तसरन अपने तासुरात से हमें नवाजें। मैं उर्दू के साथ महफिल के साथ 12 साल से जो है जुड़ा हुआ हूँ उर्दू की खिदमत के लिए, पर्सनल खिदमत नहीं, दूसरे खिदमत के लिए। तो इनके साथ साथ इनके ताउन से, इनको मिलजुल के इनके मशवरों पर जो है हमने एक हिंदुस्तानी उर्दू मंच एक इदारा कायम किया है, एक ट्रस्ट कायम किया है जो क्वींस रोड क्रॉस अपना शिफा हॉस्पिटल के बगल में है। और उसमें जो है हम लोगों ने ओपन सब अंजुमनों को, जितने भी उर्दू के लिए खिदमत कर रहे हैं, उर्दू इदारे हैं, उनको हमने ऑफर दिया है कि हम लोग आपके ताउन के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि इख्तिसादियात अगर कुछ फंड्स कम पड़ते हैं तो हम भी देने के लिए तैयार हैं। जैसा हमारे मुल्ला साहब ने कहा था कि हमारा उर्दू का भी उर्दू पढ़ाने का इंतजाम है, उसमें जो है आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए कम से कम 3 हिंदू पढ़े लिखे नौजवान जो है उसमें जो हिस्सा ले रहे हैं, 3 हिंदू। और उसमें जो है खलील जोशी जैसे लोग होता है वहीं से वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी आगे पढ़ रहे हैं। और इस इदारे का मकसद ये है कि उर्दू को जो है एक फैलाव करके, मतलब तमाम इदारों से मिल के जो है जुड़ के जो है इसको जो है आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारा अभी जो फिलहाल जगह है छोटी है, और हम चाहते हैं उसको एक्सपैंड करके एक लाइब्रेरी बनाना और एक रिसर्च सेंटर बनाने का जो है हम लोगों ने सोचा है आपके तरफ से। अब जो हजरात उसमें MA करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनकी खिदमत के लिए भी हम लोग काम करेंगे। उनकी अगर फीस की जरूरत पड़े, फीस का कुछ इंतजाम नहीं हो तो हम लोग जो है भरने के लिए तैयार हैं। और दूसरा जो है हमारी प्लानिंग ये है कि उर्दू स्कूल जो खस्ता हाल है, कम से कम साल में 20 स्कूल जो है हम लोग अपनाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। अभी हमने 4 स्कूलों में जो है मुआयना किया है। हम लोग चाहते हैं जून से पहले जो है कम से कम 4 या 8 या 10 ऐसा कुछ स्कूल जो है अडॉप्ट करें और जो है उसके इंतजाम करें। और हम चाहते हैं कि उन मोहल्लों में जहाँ पर स्कूल है वहाँ के लोग हजरात जो है, जो रईस हजरात हैं, जो फारिग हाल लोग हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग हैं, उन लोगों को इंचार्ज दें और हमारी तरफ से कुछ तालीम देकर जो है उसको इम्प्रूव करने का सोचा है। और मैं हमेशा से जो 10-12 साल से टीचर्स हजरात का दुश्मनी रहा हूँ। ये हमारी बदनसीबी है कि खवातीन को जो ये जो है आज महफिल निसा है, इतने काबिल याफ्ता, उनका पढ़ी तालीम याफ्ता, सब डॉक्टर हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। उन्हें उर्दू स्कूल के टीचर जो है सो रहे हैं। घर का काम अपने बच्चों से कराना, स्कूल का काम अपने बच्चों से कराना, करते करते इतना नफरत आ गया स्कूलों में बच्चों को दाखिला लेने के लिए, कोई बच्चा भेजना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि थोड़ी बेगानी लाएं, बच्चों को जो है 1-2 स्कूल टीचर अपनी तरफ से प्राइवेट तरफ से जो है मुखर्रर हो, हम उसकी देखभाल करें। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब हमारा तालीम करें।
बहुत बहुत शुक्रिया महफिल निसा का, मुबारकबाद हो, कामयाब लग रहा है मुझे, शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.